चलो फिर ये प्रोग्राम रीड करते हैं. Yesterday I told you like what are the steps if we wanted to invoke a third party web service, what are the steps. So as in step number one, we require to get the endpoint URLs and everything, all of these methods and everything. And we require to add that into the remote site settings so that we already have that, that we already have that. So for the security controls, if you go and if you find this remote site setting, so we have added this postal PinCode API, right? And the URL is API postal. Here I certainly require to make some changes because API, this is something I should rather add it. So I'm making some editing over here because instead of this is the complete API, right? This is the complete API. So I'm making that changes and I'm now saving it. So as in step number one, we require to add it into the remote site setting inside the Salesforce. So what that we already did, right? That we already have it. Now let me design the interface. Interface in the sense, let me design a visual force page, the controller class, and whatever it's required, whatever it is required. Let me design that interface so that what we are going to do is like, we will be called for this API. This API, we are calling it remotely from the Salesforce. We will going to provide this pin code and we are fetching the values from that particular web service. We will be displaying that onto a visual force page. So this is what the program we are supposed to do, right? So it's a real-time program I'm telling you this. So here because we are not taking this manually, rather we are doing it the way we actually do in the integration. So let me start with this. Okay, if you remember for JSON parser, I created a similar kind of class. So I'll be using that class only. I'll be doing some modification in that as well. So to remember I created this class already. Actually, what is going to be happen is like, when we call this postal, whenever this API is getting hit, when we call this API, by the way, we already know how to parse that response, right? And if I supply any of the pin code over here, right? So this is what the JSON format we receive. Now here, what are the things? The things what we have parsed is name and the description value, the branch type, office, deliveries, whatever. So this we already have, like we already know how to pass this content. And for that content, right, we already have created a class. We already created a class. That is what even we have used inside our own JSON parser. Now I'll be making the use of the same class, but thing is like because we wanted this class to be get called. We wanted all of these values, name value, all of I mean all of these variables, I wanted to call this inside visual force page. So what I will be doing is like I'm just making one modification over here that every variable, I'm making it get and set. Why? Because we wanted this all variables to be now, because now we are designing a logic where we are implementing one of the visual force page. So what I'm doing actually over here is like, every variable over here is going to be get called. Every variable over here is going to be get called inside a visual force page, and so I'm actually writing this. I'm actually writing this get and set method. I'm actually writing this get and set method in front of every variable. That is what the modification required. That is what the modification required. Let me now save this class. So now every variable over here, name, description, branch, we can call them, we can call them inside your visual force page. Right? We can call them inside your visual force page. Okay. So let's consider this as to the step number one. Anyways. Now let me design a visual force page, design a visual force page for that. So I'll be following that technique, foreign technique rather, I'll be following that foreign technique, right? Rex, and then
For this, development mode is required to be enabled. We already did that, right? When we were doing that programming, I'm giving search Indian postal CS postal branch page. Search Indian postal branches page. This name, this name, we can paste it some. So with this name, there is no page that exists, right? Because we haven't created in the past. So let me create a page, a Visual Force page for this, right? Let me create that. Right? Removing this default code, let's design this page according to our. I'll be creating one controller class as well. I'll be creating one controller class as well. The same name, controller. So now as soon as I'll be saving this, it's going to give one error. At the same time, we can create controller from here as well. Okay. And then control. This would be the controller now. The default coding what we have done, like setup equals to false, and then sidebar. Sidebar equals to again false, and show header equals to true. Like show header equals to true. Uh, tab style, tab style as well. Tab style, let's say order. There is a standard object order. I'm taking that tab style, nothing else. Try to save this. There is no such class. There is no such class with this name. Let me create one other class as well. Okay. So one controller class as well is created. Search Indian postal branches control. Okay. Fine. After this, let's go with the hierarchy what we have done. So Apex section header. Apex section header. The title as postal details, and then subtitle. Subtitle is postal branches. Postal branches. Okay. This is my subtitle. So if you save it, here it's going to be get appear like this. Okay. Here is going to be get appeared. Now you can remove the tab style if you don't want it. Okay. In that case, the tab style of home it's going to take this that type style. That perfectly fine. So okay. Now let me open a form for this Apex form. Everything what we write it inside the form. Remember how we have coded everything inside the Visual Force page. Okay. So Apex form, and let me open the page block for that as well inside the form. Apex page blocks. Okay. Apex page block where the title is like postal branches block. Postal block. Fine. And within the page block, now let me open some of the page block sections like Apex page block section. Apex page block section. The title as search branches, and then collapsible equals to true, and then columns I wanted this to be get displayed into, so two columns, right? Now within the page block section, uh, I will be creating one of the input field apex input,
text. Apex input text. Yes. So apex input text where label equals to enter the postal pin code. Then I also wanted to give some the HTML placeholder as well. So HTML placeholder, enter pin, enter. Let me save up to this and see how does it looks like. So like this. Okay. Here, someone is supposed to enter the pin code, whatever, and then we are going to give one button over here as well. We are going to give one button over here as well, right? Now within this page block section, introduce one command button as well. One command button with value equals to search, or rather search packages. Yeah. So this is how the interface would look like to be. Here we are asking the user to enter the pin code and press this button, right? Now I certainly required कि what happens when you click this, what happens, the value where goes to what. तो ये मैं अभी प्रोग्रामिंग में पहले डेवलप करता हूँ, उसके बाद में वापस यहाँ पर आता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आता हूँ कि इसकी वैल्यूज कहाँ जाना चाहिए, और शायद यहाँ बनाना पड़ता है। Let's प्रोग्रामिंग स्टार्ट। चलो कंट्रोलर क्लास पे चलते हैं। कंट्रोलर क्लास पहले डिजाइन कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे वापस आते हैं। So instead of doing programming over here, such यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के बजाय let's do it into the developer console. तो developer console में we certainly got that intelligence part. ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे ना करते हुए let's do it inside a developer console. The name of that class, search Indian. I certainly require पहले तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ कोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ पढ़ सकता हूँ। यहाँ सेव करता हूँ, फिर उसके बाद क्लास वहाँ पे आएगी, राइट? सो big search Indian public string postal pin. I'm just defining one variable, get and set property. Get and set property. I'm just defining one variable. Try to save this. Okay. Now let's go to the development. So let's try to find out that class. It's not sure. Search. It's not sure. So rest of the programming we are going to do it over here.
बिकॉज डेवलपर कंसोल पे यू अंडरस्टैंड वी गॉट दिस इंटेलिजेंस, तो यहाँ टाइपिंग थोड़ी सी आसान होता है. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन वन ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल. मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया पोस्टल पिन कोड. ठीक है. व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इज लाइक कि यहाँ पे ओवर हियर जब ये एंटर करेगा, है ना, यहाँ पे precisely over here when somebody is entering. अभी मैंने इसको वैल्यू दी नहीं है, ये इसको वैल्यू दी नहीं है. जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो दैट वैल्यू आई वांटेड इट गेट टू दिस वैल्यू, यहाँ पे जो यूजर एंटर करने वाला है यहाँ इस पर्टिकुलर, तो उसकी वैल्यू आई एम गोइंग टू असाइन इट टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, इस पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, इस पे असाइन कर. सो वी विल डू इट. पहले मैं कोड कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं. ठीक है. Now see, we already had created one of the class with the name postal branch details, right? And all of these variables, जब हमें response मिलता है तो we are certainly going to require all of these variables. जब हमें JSON response मिलता है तो उसमें name field रहती है, description is a field, branch type is a field, right? These all are the fields. मैं इस class का use करने वाला हूँ. This class, this class is like I'm actually calling this over here. मैं क्या कर रहा हूँ कि because response में more than one responses रह सकते हैं, तो उस क्लास का मैं एक जैसे हम लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, अकाउंट कॉन्टैक्ट दे आर आल्सो क्लासेस अकॉर्डिंग टू ORM. In the same way, I'm actually creating a list collection of this class. क्योंकि I'm expecting more than one responses, those who are having all these as a key, right? And that is the reason I'm actually creating a list collection of this particular class. ये जो क्लास है हमारी, इसकी मैं एक लिस्ट कलेक्शन क्रिएट. And then I'm making this as like LST branches. Yeah. So this collection again, I'm making this as get and set. See, every time understand this. Whenever you create anything, and you wanted this to get migrated, to the Visual Force page, certainly required to make it get and set. We certainly required to make it get and set. Always remember this. So because we already created a class हमने पहले से बना रखी है postal branch details के नाम से, right? और उसमें जितने भी ये variables है, we certainly required all those variables. Certainly require all those variables. What I did is like, कि मैंने उसका एक लिस्ट कलेक्शन बनाया एंड दैट लिस्ट कलेक्शन आई एम एक्चुअली इंपोर्टिंग दिस ओवर हियर. इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. चलिए, तो उसको भी आपने दिस कलेक्शन ये रिक्वायर टू गेट एंड सेट. अभी इसको मतलब इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा. विल डू इट, दैट वी विल डू इट, सो डोंट वरी. अब इसको इनिशियलाइज नहीं किया है पूरी तरह से, बस अभी डिफाइन किया है, इसको आगे चल के मैं इनिशियलाइज भी करूँ. उसके बाद में उसके बाद में रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए वी वुड गोइंग टू रिक्वायर वन स्ट्रिंग वेरिएबल, पब्लिक स्ट्रिंग. रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए जो रिस्पॉन्स आता है जेसन के फॉर्म में, उसको पूरा हैंडल करने के लिए ना, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको स्टोर करने के लिए रहता है पब्लिक रिस्पॉन्स, पोस्टल रिस्पॉन्स दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ जेसन, राइट? उसके लिए आज एक वेरिएबल डिफाइन किया. आई कैन मेक इट गेट इनसाइड. तीन चीजें अभी और लगेगा तो और डिफाइन कर लूंगा. नाउ पब्लिक, अब मेथड बनाता हूँ मैं. पब्लिक वॉइड एग्जाम्पल सर्च पोस्टल. मैं पूरा कोड समझाऊंगा, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस. क्या लिख रहा हूँ सब समझाऊंगा. अभी कैसा ना, आधी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, उसके हिसाब से बनाता जाता हूँ. सो पब्लिक वॉइड या पब्लिक वॉइड सर्च पोस्टल ब्रांचेस. एक अब मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ. मेथड के अंदर में सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ. LST branches equals to न्यू. क्योंकि अगर मैं इसको बाहर डिफाइन करूं, बाय द वे ना, इफ यू आस्क मी कि सर ये बाहर भी हो सकता है, तो यस हो सकता है, बट फिर इसकी बॉडी के अंदर स्कोप में कैसे आएगा? इसके लिए फिर आई एम डिफाइनिंग दिस इनसाइड दिस, है ना, मेथड के अंदर इसको डिफाइन कर लिया मैंने. अब यहाँ पर नाउ वी हैव LST ब्रांचेस. एक लिस्ट कलेक्शन हमारा है, इसमें हम LST ब्रांचेस है. स्ट्रिंग. ठीक है, चलो
सो ये कलेक्शन मैंने अंदर में इसको डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में नाउ दिस वैल्यू what we are getting, ठीक है, दिस वैल्यू वी आर गेटिंग इट फ्रॉम विजुअल फोर्स पेज। फिर यहाँ पे जो यूजर एंटर करेगा, यहाँ पे जो यूजर एंटर करेगा, ठीक है, तो जब इसमें एंटर एक काम करते हैं, साइड बाय साइड भी कोडिंग कर लेता है, साइड बाय साइड भी कोडिंग। लेट्स डू वन थिंग, अभी ज्यादा क्लियर होगा ये। सो वैल्यू व्हाट यूजर आर एंटरिंग, यू नो, जहाँ यहाँ पे जो भी यूजर एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ जो भी यूजर एंटर कर रहा है, ये पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट में वी आर आस्किंग देम टू एंटर द पोस्टल पिन कोड, ठीक है। तो यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है, लेट्स टेक दैट वैल्यू एज वेल, यू नो, लेट्स टेक दैट वैल्यू एज वेल। वैल्यू डायनामिक है एंड दैट्स व्हाई यू रिक्वायर टू डू इट लाइक द फर्स्ट शीट का फॉर्मेट होता है। एंड वेयर डू यू वांटेड टू स्टोर, आई वांटेड दिस टू बी गेट स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल, ये जो मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर आई एम राइटिंग दिस वैल्यू इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है दैट शुड गो टू पोस्टल पिन कोड, ये वाले वेरिएबल पे जाना चाहिए, ठीक है, दैट शुड गो टू द पोस्टल पिन कोड वेरिएबल। और ठीक है, save this. And the next thing what is like, you know, I defined one of the method, you know, I defined one of the method over here with the name search postal branches। ये एक method भी define कर रखी है, ठीक है। When somebody hits this button, so ये button को जाता है, वो button को hit करता है, search button, apex command search button। तो ये button को hit करने के बाद, you know, action, what action should be called? The same thing, okay? What action should be called? Whenever somebody hits that button, we wanted this method to be get called, right? Search postal branch, अभी मेथड बनने की है, अभी मेथड बनने की है, ठीक है, यहाँ पे। सो ये साइड बाय साइड में दो चीजें कोड कर लिया, ठीक है। एरर दे रहा है बिकॉज आई हैवंट सेव्ड इट, हैवंट सेव्ड, सेव इट फ्रॉम हियर, लेट मी वंस अगेन सेव इट, ये हट गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये when this when somebody is entering the value, when somebody is entering the value, that value will be going to get transferred into your variable postal pin code, and after hitting this search branches button, this particular method जो अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ, this particular method will going to be get called, ठीक है। चलो, so inside the method, you know, inside the method we first of all require to see whether this particular, I mean whether the user has entered the value inside this or not। so I'll be checking that if, ठीक है, if the postal pin code, ठीक है, if it is not equals to null, if it is not equals to null, and postal pin code is not equals to empty. Okay. As a best practice, we always do this. You know that. As a best practice, we always do this. That means it must have a value. User ने कुछ ना कुछ value enter किया होना चाहिए। उस आगे का पूरा logic है that completely depends on this, क्योंकि यही तो वो value जो हम आगे API को भेजेंगे, उसके हिसाब से हमें response मिलेगा। That is the reason it's very crucial to check this कि user ने वाकई में उसमें कुछ डाला है कि नहीं डाला है। That's why, you know, you always perform this। चलो, उसके बाद में what are the things, you know, what are the things we require to send based on that, अब जो मैंने आपको कल पढ़ाया है, based on that, मतलब whenever we set up, whenever we invoke any third party website, so what we required all these parameters to be get set। हमें endpoint URLs, method name, है ना, all these parameters we certainly required to set, right? ये सारी चीजें हमें भेजना पड़ता, ये सारी चीजें हमें भेजना पड़ता whenever we wanted to invoke any third party web services। Now based on all these primary information, you know, based on all these primary information, अब मैं यहाँ पे I'm designing that particular interface। So my endpoint URL, ठीक है, this endpoint for that, for sending the endpoint URL, I'm actually defining one of the string variable, the name endpoint URL, the name endpoint URL। And by the way, what is your endpoint URL? So आप copy करो, this is your endpoint URL, this is your endpoint URL that you certainly require to send, right? This is your endpoint URL, okay।
एंड आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और, when we hit this, when we hit this API, तो along with that, along with, I mean, यहाँ तक मैंने पेस्ट किया है, देखो, ठीक है। along with this api.pincode.in है ना, पिन कोड, it certainly requires, इसके आगे में क्या चाहिए, it certainly requires a pin, certainly requires a pin code, बराबर है। तभी तो वो देगा, मतलब this is what your endpoint URL, this is your API, but this API certainly requires, whenever this API is going to be get hit, what it requires the pin code। तो पिन कोड आपने कहाँ जमा किया, पिन कोड आपने कहाँ जमा किया, पिन कोड जो है आपको यहाँ पर आया है, राइट, यहाँ पर यूजर ने एंटर किया है, और वो वैल्यू आपने कहाँ जमा करी है, पोस्टल पिन कोड नाम के वेरिएबल। ये देखिए, अभी धीरे धीरे देखो सब क्लियर होता चला जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आई एम टेलिंग यू, बट ना धीरे 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 ना सब अपने आप क्लियर। तो आपने उसे कहाँ जमा कर रखा है, पोस्टल पिन कोड नाम के वेरिएबल। तो इसके ठीक आगे में, इसके ठीक आगे में you require to append that, how to append that, with the plus symbol। क्या append करना है, postal pin code, ठीक है। अब ये बन जाता है मेरा complete URL, अब this becomes my complete URL। तो URL actually hit करना है, ठीक है, वो ये पूरा URL बन जाता है, राइट, अंडरस्टूड यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स डिफाइन द HTTP क्लास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और HTTP क्लास डिफाइन करते हैं। इसके आगे अब सारा जो मैनेज करेगा वो करेगा HTTP क्लास, ठीक है। तो yesterday I told you one thing, ये HTTP क्लास जो होती है उसमें HTTP इज योर मदर क्लास, पेरेंट क्लास जो भी है, कि HTTP इज योर, दिस इज हाउ वी ऑलवेज डिफाइन इट, दिस इज हाउ वी ऑलवेज डिफाइन इट, राइट। और HTTP क्लास के अंदर आता है आपका HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। सबसे पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना है एक HTTP क्लास का, इवन आई कुड कॉपी द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। So I am defining one of the variable, I am defining one of the object of this particular class, right, HTTP। और इसी के अंदर HTTP क्या है, कल हमने डिस्कशन किया था कि HTTP is your parent class। Now HTTP do have some methods, HTTP के पास अपने कुछ methods हो। Now for this parent class there are two child class as well, HTTP request and HTTP response। Now both of them do have the methods, उनके पास भी methods हैं, हर क्लास के पास methods हैं। If you wanted to access these methods, you require to create an object of HTTP class। मैंने अभी अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पोस्टल HTTP, इसके लिए, ये क्लास के लिए। तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, आई कैन नाउ एक्सेस देम विद द पोस्टल HTTP, बिकॉज पोस्टल HTTP रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, राइट। चलो, ओके, so I just now have defined one of the variable of this class, एक वेरिएबल क्रिएट किया इसका। उसके बाद में let me now initiate the request। So after this HTTP request, postal request equals to new। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, आई मीन जैसे मैंने HTTP क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, अब मैं रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट जो कि इसकी सब क्लास है, इसके अंदर की चाइल्ड क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन, न्यू HTTP रिक्वेस्ट क्लास। ये है पेरेंट, आई मीन ये पेरेंट नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू HTTP क्लास पोस्टल रिक्वेस्ट, दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू HTTP रिक्वेस्ट क्लास, राइट। अब आगे बढ़ो, अब इसकी मदद से आपको पैरामीटर्स को रिक्वेस्ट करना है। So I will be copying this, and now postal request का देखो सारे आप, ठीक है, set the endpoint URL, set the endpoint URL, endpoint URL जो उसको सेट करो। endpoint URL ये है आपका, दिस इज योर endpoint URL। आपने इसे पहले से स्टोर कर लिया है किसमें, इस स्ट्रिंग वेरिएबल में, ये वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे स्टोर ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा endpoint URL सेट हो गया। और क्या देना पड़ता है हमको, मेथड नेम देना पड़ता है। एंड पॉइंट URL हो गया, मेथड नेम, टाइम आउट, ये सब देना पड़ता है
राइट। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, कुछ, तो यू सर्टेनली रिक्वायर टू सेंड फ्यू पैरामीटर्स, जिसमें आता है एंड पॉइंट यूआरएल, मेथड्स, राइट, ऑल दिस थिंग। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसकी मदद से वी आर डूइंग एवरीथिंग, राइट। वी आर डूइंग दिस एवरीथिंग विद दिस। सो अगेन after this, the second parameter what we wanted to supply over here is set method। ठीक है, set method कौन सी मेथड? योर मेथड, इसके लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वेन एवर दिस एपीआई रिक्वायर्स टू बी गेट हिट, कौन सी मेथड कॉल होगी। तो मेथड का नाम है गेट, मेथड का नाम है गेट। एंड सो हियर एज वेल, हियर एज वेल यू रिक्वायर टू राइट डाउन गेट। ठीक है, हियर एज वेल यू रिक्वायर टू राइट डाउन गेट। उसके बाद में टाइम आउट भी हम दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो भी चलता है, बट दे देना अच्छी बात। सो पोस्टल पिन कोड डॉट सेट टाइम आउट। टाइम आउट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स होता है। तो फॉर 2 seconds आई एम गिविंग इट 20,000, फॉर 20 seconds इंस्टेंस 100,000, 10,000, दिस बिकम्स 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बन गया ये। ठीक है, दिस बिकम्स 20 सेकेंड। ये था मेरा रिक्वेस्ट, ये मैंने रिक्वेस्ट की बॉडी बनाई। ठीक है, ये रिक्वेस्ट की बॉडी बनाई। अब इसको जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इसको जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, राइट। तो दैट वी आर गोइंग टू हैंडल इट। चलो इसके आगे फिर अब कोड को पढ़ाते हैं, लाइक दिस। नाउ आई एम जनरेटिंग एचटीटीपी। एक बार अगर आप अच्छे से लिख लो ना इसको, तो ये पूरा समझ में आ जाता है कि पहले आपको हमेशा फादर जो पेरेंट क्लास है वो बनानी चाहिए, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट की बॉडी बनानी चाहिए। ये सब आ जाता है धीरे धीरे, अपने आप समझ में आता है। पहले प्रोग्राम में इट ऑलवेज लुक्स लाइक टू बी टफ। ठीक है, फिर भी मैं काफी स्लो जा रहा हूँ, काफी स्लो जा रहा हूँ, बट धीरे धीरे ये आ जाता है समझ में। ऐसा हो सकता है पहले प्रोग्राम में हर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसमें ये नेचुरल है, दिस इज नेचुरल। लेकिन एक बार जब आप इसको कोड करना स्टार्ट करते हो ना, तो यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि जब आपने फर्स्ट टाइम जब विजुअल फोर्स पेज लिखा था, पहले तो ये सारे जो टैग आपने सिस्टमेटिकली लिखे थे, पहला प्रोग्राम अगर आपको याद हो कि उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ होगा। So for that first time you feel this is something which is very complicated, right? But then gradually when we start writing the codes as well, when we start creating the pages, तो आपको समझ में आने लगा कि what is the default hierarchy with this. Like page is your first tag, section header, and then we define a form, and then we define page block. Everything whatever we do, यहाँ तक तो ये hierarchy as it is रहता है. After that we certainly open page block section, उसके अंदर में लिखते जाते हैं हम लोग, है ना। तो in the same way, I wanted you to feel this same thing over here as well. If this is for the first time you are interacting with the HTTP classes, so it might appear you to be like a complicated thing. And I'm very agree with that. I'm not saying कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ. I'm saying yes, this is what. Because I myself have feel when the first time I learned that, I myself have feel the same feeling I was having in my mind also. But later on, gradually when you start doing the programming with this, so this becomes easy. ऐसा बहुत tough नहीं लगता फिर. You just require to follow the step by step migration जो इसमें होता है ना, that you certainly require to follow. जैसे हम पहले पेरेंट क्लास डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट में यूजुअली भी रिक्वायर टू सेंड लाइक ऑल दीज पैरामीटर्स, ये दीज आर सम ऑफ द कॉमन पैरामीटर्स। अगर वेब सर्विस इससे भी ज्यादा कुछ मांग रही है, वैसे तो ये वेब सर्विस ने दो ही चीजें मांगी है, एंड पॉइंट यूआरएल और मेथड। हाँ, हम टाइम आउट अपनी तरफ से दे रहे हैं, और ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो जब आप एक बार रिक्वेस्ट बॉडी बना लो, जैसे समथिंग कॉल्ड एज रिक्वेस्ट बॉडी, नाउ यू रिक्वायर टू आस्क इट इनसाइड रिस्पॉन्स, ऐसा। तो ये बेसिकली आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि ये कोई ना ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पहली बार होने की वजह से प्रोबेबली आपको लग सकता है कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मगर जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही आ जाए। तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जैसे हम पोस्टल रिक्वेस्ट दिया है, इसका नाम देते हैं पोस्टल रिस्पॉन्स। पोस्टल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू पोस्टल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू
लाइक दिस। अब मैं इसको ये यूज करता हूँ यहाँ पे पोस्टल एचटीटीपी, ठीक है, पोस्ट यानी इसका ये जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका जो वेरिएबल डिफाइन करेगा वो यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पोस्टल एचटीटीपी डॉट। अब देखो इसमें इतनी मेथड्स हो, सेंड स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग एक्चुअली रिस्पॉन्स लेने कन्वर्शन के लिए मैं सेंड करना है, एचटीटीपी डॉट सेंड करना है। क्या सेंड करना है मुझे? आई वांटेड टू सेंड द रिक्वेस्ट, आई वांटेड टू सेंड द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कहाँ पर है आप? रिक्वेस्ट ये नहीं, आप रिक्वेस्ट की जो पूरी बॉडी है इसमें एंड पॉइंट, सेट मेथड, टाइम आउट सब आपने यहाँ पे बना के रखा। दिस यू वांटेड टू सेंड, इस रिक्वेस्ट को मैं इससे रिप्लेस कर, राइट। अब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी, जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। दैट रिस्पॉन्स वी आर हैंडलिंग इट इनसाइड वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और वो वेरिएबल है पोस्टल रिस्पॉन्स, वो वेरिएबल है पोस्टल रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसा या मतलब ये डिफॉल्ट सीक्वेंस है, इसको आप हर बार करना है whenever you are I mean whenever you are interacting with any third party web service, whenever you are invoking any third party service, तो ये आपको हर बार करना पड़ता है। द सेम वे यू रिक्वायर टू कोड इट एवरी टाइम। वेरिएबल्स के नाम चेंज हो सकते हैं, अभी पोस्टल एचटीटीपी है, कल चल के वेदर एचटीटीपी रह सकता है, वेदर रिक्वेस्ट रह सकता है। जनरली जब हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाते हैं तो उसके आखिरी में रिक्वेस्ट नाम रखते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाते हैं उसके आखिरी में रिस्पॉन्स रखते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी है प्रोग्रामिंग की, ताकि वेरिएबल देख के आपको भी क्लियर रहे कि ये वेरिएबल किसको बिलोंग है, राइट। ऐसा ही Still, get, get does not exist, get नहीं रहता। यस यस यस, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है तो इसके लिए गेट जो है आपको उसके अंदर देना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, बराबर, इसकी भी बात बराबर। सेव अप टू दिस, ओके। अब इसके आगे अब थोड़ा सा आगे बढ़ के अजम्पशन करनी है अपने को। नाउ व्हाट वी विल अज्यूम इज लाइक कि अब जब हम ये एपीआई हिट करेंगे और हम एक पोस्टल पिन कोड देंगे, है ना, हम एक पोस्टल पिन कोड देंगे, दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी, दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी जो रिस्पॉन्स आता है इसके पास से, इस टाइप का एक रिस्पॉन्स ये मुझे रिटर्न करेगा। इट विल गोइंग टू रिटर्न में दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, राइट। ऐसा मैं अज्यूम करके चल कि व्हेनेवर दिस एपीआई इज गोइंग टू बी गेट हिट, ये एपीआई जब हिट होती है तो इसकी जो एपीआई जब हिट होती है तो दिस इज गोइंग टू गिव मी दिस रिस्पॉन्स, राइट। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग ओवर। तो यही सेम चीज हम मान के चलते हैं कि ये एपीआई हिट होगा अलॉन्ग विद दैट पोस्टल पिन। ये सब हमने अभी रिक्वेस्ट कर दिया है ना, विद दिस वी हैव रिक्वेस्टेड, हमने बोला एचटीटीपी को कि आप सेंड करो, किसको सेंड करो? पोस्टल रिक्वेस्ट। योर पोस्टल रिक्वेस्ट हैव एंड पॉइंट यूआरएल, ये वाला यूआरएल है, ठीक है, जिसमें पोस्टल पिन कोड की वैल्यू उधर आपके विजुअल फोर्स पेज से आ जाएगी, विजुअल फोर्स पेज से आ जाएगी जिसको आपने ये वेरिएबल में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जो भी वैल्यू जैसे 440024 ये आ गया, तो अब जब ये हिट होगा तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ये है वो कंप्लीट रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को अपने को पास कर, वी वुड लाइक टू पास दिस रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स को हम पास करें, राइट। चलो, तो इसमें जो जो पैरामीटर्स हैं, डिस्क्रिप्शन, नेम, ये सारी चीजें हमने पहले से निकाल के रख लिया, लाइक प्रीवियस प्रोग्राम में वी हैव टेकन ऑल दिस, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास मौजूद है ना, हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी एक क्लास मौजूद। चलिए, तो अब हम इसको पास करें। अब ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई हमारे पास में वो सारा रिस्पॉन्स आ गया है, सारा रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है। तो आफ्टर गेटिंग दिस ऑल, आफ्टर गेटिंग दिस, व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक, व्हाट आई विल बी डूइंग, I will going to parse the JSON content and RESEN and represent in the present it onto VF page, onto VF page in tabular format, in tabular form। तो मैं इसको पास करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स आया है मेरे पास में, दिस रॉ रिस्पॉन्स, ये पूरा रिस्पॉन्स जो आया हुआ है उसको मैं पार्स करता हूँ।
और पार्सिंग के दौरान में वी कोड यू नो दिस लाइक वी कैन डिस्कार्ड दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, एंड वी कैन ओनली पास इट फ्रॉम हियर। वो हमारे हाथ में रहता है कि हम कितना पास करें, तो ही पास करें इसको। इसके लिए कोई जगह है कि हमारे पास? तो ऑफकोर्स नहीं है, वी डोंट वांटेड इट टू बी गेट डिस्प्लेड। मैं एक काम करूंगा, 0.6 रिस्पॉन्सेस है, तो उसके लिए जो हमने विजुअल फोर्स पेज बनाया है वहां पे मैं काउंट डिस्प्ले कर दूंगा, तो ये ऐसे ही पता चल जाता है। वी डोंट रिक्वायर दिस इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अभी फिर से वही चीज रिप्रेजेंट कर। चलिए, तो बिकॉज वी वांटेड टू डू द पार्सिंग, तो पार्सिंग के लिए हमें जो है सिस्टम डॉट जेसन डॉट पार्स जो हमारी क्लास है उसका मुझे यहाँ पे यूज करना है। सो सिस्टम डॉट जेसन डॉट, यानी जेसन पार्सर, सिस्टम डॉट जेसन पार्सर, जेसन पार्सर क्लास जो है उसको यूज करना है। नाउ गिव एनी पी, इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करो। सो इट वुड बी लाइक पी पार्स इक्वल्स टू सिस्टम डॉट जेसन डॉट क्रिएट पार्सर, ठीक है, क्रिएट पार्सर। नाउ दिस पार्सर व्हेन यू आर कॉलिंग दिस, अभी इसके पहले हम क्या करते थे, इफ यू रिमेंबर, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करता था, वो स्ट्रिंग वेरिएबल में ये सारी वैल्यू स्टोर करता था, उसका नाम देता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको जो वैल्यू आ रही है, दैट सब सब कुछ जो आ रहा है, सब कुछ जो आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है। ये एचटीटीपी रिस्पांस का वेरिएबल है, इसके अंदर आ रहा है, राइट, इसके अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर आ रहा है तो आपको इसका नाम देना पड़ेगा। एंड इसमें ये एक्चुअली दिस इज अ मेथड, हमें ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी मेथड है जिसमें वो सारा मिल रहा है आपको? दीज आर द मेथड्स। उसमें से आपको लेनी है गेट बॉडी। तो गेट बॉडी का मतलब क्या होता है? गेट बॉडी का मतलब होता है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स की बॉडी मिलेगी। वही चाहते हैं आप यहाँ पे, यू वांटेड टू गिव द जेसन स्ट्रिंग, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, राइट, ये पूरी स्ट्रिंग हमारा रिस्पॉन्स है। एंड वी वांटेड कि ये रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर आना चाहिए, पूरी स्ट्रिंग जेसन की यहाँ पर आना चाहिए। तो रिस्पॉन्स, जब ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो रिस्पॉन्स आके कहाँ जमा हो रहा है? इसके अंदर। ये क्या है? दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्लास। इस ऑब्जेक्ट, इस एचटीटीपी क्लास के अंदर जो मेथड्स होती हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स के अंदर जो मेथड्स होती हैं, गेट बॉडी, ये किस लिए होता है? रिस्पॉन्स की बॉडी लेने के लिए। गेट स्टेटस, स्टेटस मतलब ये जो है ना सक्सेस, स्टेटस क्या है इसका? सक्सेस, उसके लिए, ठीक है। बॉडी इज एक्चुअली फ्रॉम हियर, ये है आपकी बॉडी, दिस इज द कंप्लीट बॉडी, दिस इज द बॉडी। और इसके पहले जो है, जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टेटस, आ रहा है सक्सेस, और क्या यहाँ पे गेट द स्टेटस कोड, स्टेटस कोड अगर कुछ होगा यहाँ पे बाय द वे तो वो इस यहाँ पे नहीं है। एक्सएमएल स्ट्रीम रीडर, ये यूज नहीं हो रहा बिकॉज ये जेसन रिस्पॉन्स है। बट एनीवे, गेट बॉडी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स की बॉडी, रिस्पॉन्स की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है, और हमें सिर्फ इतना, इतने का काम है ना, वी जस्ट वांटेड टू, हमें सिर्फ इतने का काम है, हमें सिर्फ इतनी रिस्पॉन्स का काम है। सो उसके लिए मैंने क्या किया कि पोस्टल रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी। चलो, अब हमारा सारा डेटा जो है वो पी पार्स में आके जमा हो गया है। अब सारा डेटा जो है हमारा वो पी पार्स में आके जमा हो गया। तो अब इसके पहले जो कोडिंग आपने इसके पहले भी की है, वही सेम कोडिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम कोडिंग, वाइल, बिल्कुल वही कोडिंग उसके पहले आपने की, ठीक है। वाइल सेम कोडिंग, पी पार्स डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, शुरुआत से लेके आखिरी तक वही सेम कोडिंग है, देखो। इसलिए हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते गए, इसीलिए मतलब एक दिन में एक टॉपिक लेने की वजह ही यही थी कि आपको उसके बारे में पूरी तरह से समझ पाए। आगे चल के जब मैं वेब सर्विस क्रिएट करूँ, ये सब जब क्रिएट करूँ, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वाइल द पी पार्सर्स, पी पार्स, ये जो मैंने वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल बनाया है, दैट नेक्स्ट वैल्यू, उसकी नेक्स्ट टोकन इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब शुरुआत से लेके आखिरी तक, शुरुआत से लेके आखिरी तक, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू द मैसेज, अकॉर्डिंग टू जो भी हमको आया है उसके हिसाब से हम पास करते हैं, ठीक है। सो इफ, फिर से
काम करता हूँ, इसको यहाँ से कोड करता हूँ, फिर देख। तो हो सकता है शायद एरर आए, तो मैं इसको यहाँ से ही कोड कर लेता हूँ। लेट्स कंसीडर कि यही पूरा बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक ना लेते हुए लेट मी टेक दिस फ्रॉम, ये पूरा ही रिस्पॉन्स पास करता हूँ, पूरा रिस्पॉन्स ही पास कर लेते हैं, फिर एम्बिग्यूटी के चांसेस ही नहीं बचते हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटी के चांसेस ही नहीं बनते, तो इसको पूरा ही पास कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर दिस होल एज अ बॉडी, ये पूरा ही बॉडी है, इसको यहीं से पास कर देते हैं। पहला जो है यहाँ पे, द फर्स्ट फील्ड ओवर हियर इज मैसेज, राइट, द फर्स्ट फील्ड ओवर हियर इज मैसेज, यहाँ से शुरू करते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि इफ इफ पी पास डॉट गेट करंट टोकन, ठीक है। जो करंट टोकन है, इफ इट्स इक्वल्स टू जेसन टोकन डॉट फील्ड नेम, ठीक है, वो फील्ड नेम। दिस यू ऑलरेडी डेट, ये आपने किया हुआ है, दिस यू ऑलरेडी हैव डेट, राइट। उसी को मैं रिप्लेस कर, एक तो वो फील्ड नेम एंड, और साथ ही साथ फील्ड नेम तो है ही है, साथ ही साथ पी पार्सर डॉट गेट टेक्स्ट, बस फील्ड नेम जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग होता है ना, फील्ड नेम हमेशा स्ट्रिंग, इक्वल्स टू यहाँ से पास करते हैं इसको मैसेज, इक्वल्स टू मैसेज, ठीक है। एकदम शुरुआत से ही करते हैं, तो एम्बिग्यूटी के चांस ही नहीं बचते। बाय द वे, अगर ऐसा है, इफ इट इज लाइक दिस, अगर ऐसा है तो इफ इट इज लाइक दिस, then first of all go to the next token. So then first of all the next token, p pass dot next token, p pass dot next token, ठीक है। सबसे पहले तो आप आगे बढ़िए, p pass dot next token, ठीक। उसके बाद में मैसेज है, ये पूरा मैसेज है, नंबर ऑफ द पिन फाउंड, ठीक है। So p pass dot next token and then I could directly print that system dot default, इसको उधर नहीं लेके जाएंगे हम टेबल पे वी वुड लाइक टेबल पे हम यहाँ से लेके जाएंगे, भले ही पीएफ पेज पे जो मैं टेबल बना रहा हूँ वहाँ उसको यहाँ से लेके जाएंगे, ओके। बट ये कुछ चीजें जो मैं कह रहा था कि डिस्कार्ड करनी है, दैट कुड वी कैन ब्रिंग इट ऑन टू सिस्टम डॉट डीबग पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो वो भी हमारा पार्स हो जाता है, और ये पूरा डेटा शुरुआत से आखिरी तक पार्स हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ मैसेज, तो मैं क्या करता हूँ इसको कि सिस्टम डॉट डीबग json message equals to json message equals to plus like your p path dot get text, get text, ठीक है। तो ये एक मैसेज जो आया हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट डीबग पे, मैसेज इक्वल्स टू ये, मैसेज इक्वल्स टू जेसन भी नहीं, मैसेज इक्वल्स टू, तो ये वाला मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग ओवर देयर इज लाइक स्टेटस, द नेक्स्ट थिंग इज स्टेटस, द नेक्स्ट थिंग इज स्टेटस, तो उसके लिए हिसाब से मुझे काम करा। तो आफ्टर दिस एकदम धीरे धीरे काम करो इसके ऊपर, कोई जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आफ्टर दिस लेट मी कॉपी द सेम थिंग, ये कोड को कॉपी करता हूँ। सो पी पार्सर डॉट करंट टोकन इज अ फील्ड, और फील्ड की जो वैल्यू है इट इज स्टेटस, फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या है, स्टेटस है। अगर फील्ड की वैल्यू दोस्त है वो स्टेटस है, then p parser dot go to the next token and success, and then status equals to, the status equals to get text, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ से अरे स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, यहाँ से हमारा अरे स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से अरे स्टार्ट होता है, पहले अरे स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है, देखिए। पोस्ट ऑफिस जब मैं आ रहा हूँ तो पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले क्या है, अरे, और उसके बाद क्या है, दिस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर योर ऑब्जेक्ट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से मुझे कोड करना पड़ेगा। आफ्टर दिस लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद दिस कोड,
Now after this, if the p parser dot get current token equals to JSON field है, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू है, that value if it is post office, if it is post office, if it is post office, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द नेक्स्ट टोकन, सिस्टम डॉट डीबग हटा देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग हटा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड रिक्वायर टू गो टू द नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन पे जाओ। नेक्स्ट टोकन पे जाने का मतलब, अब नेक्स्ट टोकन क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है एक ओपनिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो ओपनिंग वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो होता है आपका, इट्स योर अरे, स्टार्ट ऑफ अरे होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट, उसी को कॉपी कर रहा हूँ, अब उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। इफ द p pass, if the p pass dot get current token, if the p pass dot get current token की जो वैल्यू है, इफ इट इज जेसन जेसन टोकन डॉट स्टार्ट ऑफ एन अरे, क्यों, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स में वैसा दिख रहा है ना, यू आर सीइंग दैट इनटू द रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स में दिख रहा है इट्स एन स्टार्ट ऑफ एन अरे, इट्स एन स्टार्ट ऑफ एन अरे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने लिखा कि अगर ये एक स्टार्ट ऑफ अरे, ठीक है, इफ इट्स एन स्टार्ट ऑफ अरे, मैं अंदर में आता हूँ एक ब्रैकेट ओपन, ठीक है, अंदर में आता हूँ एक ब्रैकेट ओपन करता हूँ, अब मुझे इसके आगे जाना है, तो पी पास डॉट नेक्स्ट ओपन, ठीक है, धीरे धीरे समझो इसको बिल्कुल रिस्पॉन्स के हिसाब से। नेक्स्ट टोकन क्या है, एक ओपनिंग करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट का नाम होता है स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये होता है स्टार्ट ऑफ एन अरे, ये होता है स्टार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट टोकन पे जब आप आ गए हो, तो फिर यहाँ पर जो चीज आपको चेक करनी है ना, व्हाट यू रिक्वायर टू चेक ओवर हियर, कि अब ये जो आपका नेक्स्ट टोकन है, इफ इट्स एन स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाले स्टेटमेंट जैसा कॉपी कर, सो इफ p parser dot get current token, if it is what, if it's an start of, if it's an start of object, तो यहाँ पे json dot start of object है, अगर ऐसा है फिर से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ओपन करता हूँ, राइट, यहाँ पर। चलो अब यहाँ से मुझे लाइक जो वैल्यूज हैं उसको पास करना, फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू पास द, पास के लिए मैंने क्लास तो पहले से बना रखी है, उस डिटेल, इसके हिसाब से मुझे पास कर, इसको डीसीरियलाइज कर सकते हैं, एक मेथड और होती है, रीड वैल्यू एज, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है ये वाली, इसका मैं नाम कॉपी कर, देन व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, अब मुझे पार्स करना एक्चुअली ना, आई आई अब इसके बाद मुझे पार्सिंग करनी है, यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक, यहाँ तक मुझे पार्स करना है, राइट। आई कैन डू वन थिंग ओवर हियर, इसका एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैच मैच इक्वल्स टू बी पास डॉट रीड वैल्यू एज, ये भी एक होता है रीड वैल्यू, आप ये करते हैं ना, डीसीरियलाइज करते हैं, सेम ओवर हियर इज रीड वैल्यू एज, सेम चीज है डीसीरियलाइज जैसा। यहाँ पे रीड वैल्यू एज में आपको वो क्लास का नाम देना पड़ता है जिसके हिसाब से आपको पार्सिंग करनी है, तो हमें पार्सिंग करनी है कि ये सारी के हिसाब से, है ना। तो बस वैसा ही है जैसा मैंने आपको डीसीरियलाइजेशन सिखाया, एक और चीज है रीड वैल्यू एज सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नया पता चले आप। तो पोस्टल ब्रांच डॉट क्लास,
ठीक है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है, राइट, यू नो दिस, हमको टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग में भी सेम वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। तो दिस इज, ये जब हम डीसीरियलाइज करते थे इन द सेम वे, सेम वे देयर इज अ थिंग एज रीड वैल्यू एज, ये भी एक और है। डीसीरियलाइज सिस्टम डॉट डीसीरियलाइज के बजाय यू कैन इवन मेक द यूज ऑफ दिस एज वेल। तो रीड वैल्यू एज में क्या देना है आपको, कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पी पास डॉट, ये जो वैल्यू है उसको कैसे लेना है। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर टू टेक इट लाइक दिस। आपको याद होगा मैंने अकाउंट के लिए अकाउंट क्लास लिखा था, अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी क्लास लिखा था। इवन फॉर द पोस्टल ब्रांच डिटेल जो प्रोग्राम बनाया था हमने, पोस्टल ब्रांच डिटेल जेसन पार्स के लिए, ठीक है। इवन इन दिस प्रोग्राम एज वेल, इवन इन दिस प्रोग्राम एज वेल, इवन इन दिस प्रोग्राम एज सी, एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज थे, तो दैट टाइम आई हैव टेकन दिस एज अ, मतलब मैंने वहां पे सिस्टम डॉट जेसन डॉट डी सीरियलाइज मेथड लगाई थी, बट फॉर्मेट वही था, फॉर्मेट वही था, सिस्टम डॉट जेसन डॉट डी सीरियलाइज। उसमें ये पूछ रहा था किसको डी सीरियलाइज करना है। तो दैट टाइम वी कैन, इसमें आप डायरेक्टली दे सकते हो, ये यू कैन डायरेक्टली गिव द स्ट्रिंग, जहाँ पे आपने स्ट्रिंग स्टोर करी, तो आपने स्ट्रिंग स्टोर करी थी इसके अंदर, एंड सो इन दिस मेथड इट रिक्वायर्स टू पैरामीटर, आपकी स्ट्रिंग और दूसरा आपका कन्वर्शन किस में है, कन्वर्शन इसमें था, एक से ज्यादा रिकॉर्ड थे, वही एक से ज्यादा रिकॉर्ड तो लिस्ट जो कलेक्शन आपने वहां लिया था, जो लिस्ट कलेक्शन आपने वहां पे लिया था, उसी में टाइप कास्ट करना है और आगे चल के उसी में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये था सिस्टम डॉट जेसन डॉट डी सीरियलाइज, जहाँ पे एक पैरामीटर आपकी स्ट्रिंग रहती है। अभी उसको ना यूज करते हुए, उसको ना यूज करते हुए मैंने यहाँ पे, बिकॉज अभी हम लोग जो पार्सिंग कर रहे हैं वो पूरा एचटीटीपी क्लास से कर रहे हैं, तो एचटीटीपी क्लास में जब आप करते हैं तो यू कैन गिव दिस एज अ रीड एज अ वैल्यू, मतलब एचटीटीपी क्लास के लिए प्रिसाइसली सिस्टम डॉट डीसीरियलाइज नहीं करता, यू कैन गिव, काम वही है, इसका काम वही है जो डीसीरियलाइज करता है, बट एचटीटीपी क्लास का जो वेरिएबल है, जैसे आपका पी पार्स वगैरह जो है, ये सब कहाँ से आ रहा है, एचटीटीपी क्लास से आ रहा है, राइट। तो आपने क्रिएट पार्सर का एक वहां पे बना रखा है, वहीं से ही आ रहा है। तो उस वक्त हम रीड वैल्यू एज, ये एक मेथड है जो यूज कर सकते हैं, इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा डीसीरियलाइजेशन करता है। तो ये पूछेगा आपको कि किसको डीसीरियलाइज करना है, तो आप जो है उसकी जो जो भी वैल्यूज है जो आप कर रहे हैं, दैट यू रिक्वायर टू, मतलब इंटर बॉडी के अंदर जो वैल्यूज आई हैं, ये पूरा रिस्पॉन्स जो आया हुआ है हमारे पास, ये पूरा इसको डीसीरियलाइज करना है, ठीक है। ओके, रीड वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है पूरा रीड कर रहा है। उसके बाद में फिर किस में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्लास पहले से बना रखी थी, तो मैंने उसका नाम दिया, ठीक है, डॉट क्लास, और यही दिस इज योर रिटर्न, दिस इज योर टाइप कास्टिंग, दिस इज एज वेल एज योर रिटर्न टाइप, ठीक है, दिस इज एज वेल एज योर रिटर्न टाइप। चलो, तो ये दिस इज गोइंग टू गिव यू वन वैल्यू, ये आपको एक वैल्यू देगा, ये आपको एक वैल्यू देगा, ठीक है, एक वैल्यू, मतलब अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे 3 से 4 वैल्यू आई हुई है ना। मेरा जो पहला रिस्पॉन्स है, पहला रिस्पॉन्स मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, सब टाइप सर्कल महाराष्ट्र नागपुर डिवीजन, यहाँ तक, ये मेरा पहला रिस्पॉन्स है, देखो दिस इज माई फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये पहली वैल्यू जिसमें नेम डिस्क्रिप्शन डिवीजन ये देगा। उसके बाद में दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा कोड करना है अभी अपने, तो ये दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू वन वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लगाया, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू वन वैल्यू, ये एक ही वैल्यू दे रहा है, सेमीकोलन छोड़ दिया था। अब मुझे इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, हमने एक लिस्ट ऑफ पोस्टल ब्रांचेस मैंने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट कलेक्शन में मुझे इसको जमा करना है, ये पहली वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो पहली वैल्यू आ गई है डॉट, डॉट ऐड, व्हाट यू वांटेड टू ऐड, व्हाट यू वांटेड टू ऐड, आई वांटेड टू ऐड फर्स्ट वैल्यू, ये ब्रांच, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई मुझे। और ये करने के बाद में पी पास डॉट नेक्स्ट होगा, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, सो पी पास डॉट नेक्स्ट होगा, दिस इज, दिस कंप्लीट्स योर, ये कोड, ये वाला कोड कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या करता जाएगा, अब ये क्या करेगा, ये एक एक वैल्यू को, जैसे इसने सबसे पहले यहाँ तक पार्स किया, यहाँ तक पार्स करने के बाद में ये इसको ऐड कर देगा आपके लिस्ट कलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में आपने दिया है पी पास डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है, पी पास डॉट नेक्स्ट टोकन,
नेक्स्ट टोकन आने के बाद में फिर से स्टार्ट ये ऊपर जाएगा कलेक्शन और देखेगा कि ये स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, बिकॉज नेक्स्ट टोकन जो है आपको वो स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यस, स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो फिर से यही वाला कोड रिपीट होगा, फिर से यही वाला कोड रिपीट होगा। ठीक है, ये रिपीट होगा तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट फिर से पार्स हो जाएगा। पार्स होने के बाद में ये ऐड हो जाएगा आपके कलेक्शन में, फिर से ये कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ ये पूरा का पूरा जितना भी है ये आखिरी तक पार्स हो जाएगा, आखिरी तक पार्स हो जाएगा और सारी चीजें कहाँ पर आ जाएगी आपकी, इस पर्टिकुलर कलेक्शन में जो आपने सबसे टॉप पे डिफाइन कर। ठीक है, इस पर्टिकुलर कलेक्शन में जो आपने सबसे टॉप पे डिफाइन कर। चलिए, ये हो गया आपके कंट्रोलर क्लास का काम, पूरा काम। चलिए, यहाँ दो क्लासेस लगनी है, आप ध्यान से देखो। एक लग रही है आपकी कंट्रोलर क्लास, इसी क्लास के अंदर मैंने ये वाली क्लास को इंपोर्ट किया। ठीक है, ये वाली क्लास को तीन क्लास मतलब दो क्लासेस लग रही हैं यहाँ पे। ये सारे जो वेरिएबल्स थे रिस्पॉन्स के लिए वो हमने एक दूसरी क्लास में बना रखा और वहां से उसको हमने वेरिएबल को फिर हमने लेना। राइट, ऐसा है। चलिए, इसके बाद चलते हैं अब आप अपन विजुअल फोर्स पे। अब विजुअल फोर्स पेज को फाइनल करते हैं। हमने इसको बनाया था यहाँ तक, पेज ब्लॉक सेक्शन, पेज ब्लॉक, ये पेज एक पेज ब्लॉक ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक पेज ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ठीक इसी के नीचे मैं दूसरा पेज ब्लॉक ओपन करता हूँ इसके आगे की प्रोग्रामिंग के लिए। सो अपेक्स पेज ब्लॉक, अपेक्स पेज ब्लॉक और लाइक टाइटल इक्वल्स टू पहले क्या पोस्टल ब्रांच, पोस्टल ब्रांचेस दिया, पोस्टल ब्रांचेस। ठीक है, और यहाँ पे काउंट दे देते हैं ना, यहाँ पे अपन काउंट दे देते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि 6 और 6 में जो भी रिस्पॉन्स आते हैं, है ना, सो लेट्स गिव दैट काउंट ओवर हियर। यहाँ पे अपन वो काउंट दे देते हैं। डायनामिक एंटिटी है, डायनामिक एंटिटी है तो अपना यहाँ पे सारे जमा हुए हैं। राइट, यहाँ पे सारे जमा हुए हैं एलएसटी ब्रांचेस के अंदर। सो एलएसटी ब्रांचेस डॉट साइज, यहाँ पे आप उसको काउंट दे, यहाँ पे आप उसका काउंट दे दो तो पता चल जाएगा कितने रिस्पॉन्सेस मिले हैं। राइट, ओके। और आईडी, आईडी इक्वल्स टू, इसको एक आईडी दे पेज ब्लॉक, आईडी इक्वल्स टू पेज ब्लॉक। ठीक, ओके। अब इसके अंदर आता हूँ। अब जो भी रिस्पॉन्सेस आए हैं अपने पास में उसको अपने को टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है। यहाँ नीचे पे, यहाँ नीचे में पूरा टैबुलर फॉर्म, मुझे टेबल बनाना है, पूरा टेबल। थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट चलो धीरे धीरे सही करेंगे। अपेक्स पेज ब्लॉक टेबल। ठीक है, अपेक्स पेज ब्लॉक टेबल, यहाँ पे मैं टेबल होता है। एंड द वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो वैल्यू होता है। वैल्यू इट इज गेटिंग, वैल्यू इट इज गेटिंग फ्रॉम दी वन ऑफ द कलेक्शन, वैल्यू इट इज गेटिंग फ्रॉम वन ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन हमने डिफाइन कर रखा है जिसका नाम है एलएसटी ब्रांचेस। राइट, इसका नाम है हमारा एलएसटी ब्रांचेस, वहां से इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, वहां से इसकी वैल्यूज आ रही है। नाउ आई एम डिफाइनिंग वन लोकल वेरिएबल। ये मैंने इसके पहले जब आपको टेबल बनाना सिखाया था, दो प्रोग्राम्स लिए हैं मुझे याद है, तब मैंने ये बताया था। तो लेट मी गिव एक मतलब एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ उसका बी आर के नाम से। चलिए, इसके बाद पेज ब्लॉक टेबल के अंदर हमको कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, पेज ब्लॉक के अंदर हमको कॉलम्स बनाने हैं। अपेक्स कॉलम, अपेक्स कॉलम। ठीक है, इसके अंदर कॉलम बनाते हैं। इसकी वैल्यू, वैल्यू इज वैल्यू इज br डॉट नेम। ठीक है,
बी आर, अब यहाँ से मुझे यहाँ से लेनी है वैल्यू सारी, यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है बी आर डॉट नेम, इसलिए हमने इसको गेट सेट किया, समझे। अगली वैल्यू रहेगी डिस्क्रिप्शन, अगली वैल्यू रहेगी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसको एक को कंप्लीट करता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हेडर, हेडर वैल्यू मतलब क्या दिखना चाहिए, ये किसके अंदर दिखना चाहिए, तो इट वुड बी ये नेम के अंदर दिखना चाहिए, नेम के अंदर दिखना चाहिए। अब बस इसी को मैं कॉपी कर, कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, एक, दो, तीन, ये तो एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। मैं बिल्कुल वही स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ आपको जिस स्टाइल से मैं एक्चुअली काम करता हूँ, राइट, बिल्कुल उसी स्टाइल से। नेम के बाद क्या देना है मुझे, डिस्क्रिप्शन। नेम के बाद में मुझे देना है डिस्क्रिप्शन, कॉलम का नाम भी होना चाहिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद मुझे देना है ब्रांच टाइप, ब्रांच टाइप कॉलम का नाम भी होना चाहिए ब्रांच टाइप। उसके बाद मुझे देना है डिलीवरी स्टेटस, ब्रांच के बाद डिलीवरी स्टेटस, कॉलम का नाम भी होना चाहिए डिलीवरी स्टेटस। इसके बाद है सर्कल, सर्कल हियर आल्सो सर्कल। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, हियर आल्सो डिस्ट्रिक्ट। एंड आफ्टर दैट डिवीजन, division here also division. After division it's region, region, यहाँ पर भी header value भी division region, it's block, block, here also it will be block. अगली वैल्यू है आपकी स्टेट, तो यहाँ पर भी आपको स्टेट ही चाहिए और यहाँ स्टेट ही चाहिए। स्टेट के बाद में है कंट्री, तो कंट्री हेडर वैल्यू की होनी चाहिए कंट्री। पिन कोड आखिरी वैल्यू, पिन कोड, पिन कोड पेस्ट किया, हाँ पेस्ट किया, लेट मी नाउ सेव दिस। कंट्रोलर से next dimension dot size to search get get search still branches. So,
changes to the Steve matches. Steve matches. So Steve matches. Steve PR. Here should save. Save. शायद एपीआई की वजह से तो मैंने शायद यहाँ पर गड़बड़ कर रखी थी। नोट साइड सेटिंग में मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी थी तो शायद इस वजह से। ठीक है। This is possible. This is possible. आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो आना चाहिए। This is possible. ठीक है, मैं डीबग करता हूँ इसको। लेट मी सी वेदर वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्सेस। मैं डीबग करता हूँ इसको। नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि कहाँ पे एरर है, किस वजह से ये फंस रहा है। यार पेज को क्या हो गया। ठीक है यहाँ से। देखो जितना भी कोड किया अभी पूरा का पूरा हटना है यहाँ से। पूरा पेज ही गायब। नीचे की पूरी प्रॉपर्टीज गायब हो गई है। यहाँ से अभी तक जितना भी सेव किया।
सेम एरर। ठीक है, मैं डीबग करता हूँ, डीबग करके बताता हूँ व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। लेट मी सी टू दैट।